Hello everyone, welcome to the session. We'll do few cards for the collective. We'll pull out 5 cards, and if we get any extras, we'll see. Please do like the video, follow the channel. We'll pull out some cards for the collective in this times of India and Pakistan tensions going on. हम बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, हमारे गाइड्स के, एंजल्स के. लेट्स स्टार्ट. My guides and angels, please show what is going to come for the people, the collective, from Indian perspective, for the people of India. What are the messages you want to send? Please treat me as a medium to convey your messages. What is going to come for the people of India as a collective? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है उसके जो हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, आप प्लीज़ हमें मैसेजेस दिखाइए. क्या आने वाला है आगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या इफ़ देयर आर गोना बी एनी इमरजेंसीज, हाउ वी हैव टू डील विद इट. आप हमें कार्ड्स दिखाइए एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स शो अस सम कार्ड्स. Guides and angels, please cards दीजिए. What is going to happen in this India and Pakistan war for the collective of India? Guides and spirits, please guide me. Please guide me to convey messages what you want to convey to the collective. गाइस ये 3 कार्ड्स कुछ आए हैं. ओहो, द मेजर अरकाना इज हियर. एंड व्हाट टू से ऑफ दिस कार्ड हियर. सी these 3 cards have come on its own, and we are going to pull 5 cards, I think, more. And the deck bottom is 9 of Pentacles. Okay, I think this card we had in earlier video also. Okay, so many major arcana cards are here. Very good messages, I think. And also what is going on since 2 weeks, what we have seen in social media is that whole of the India is talking in one tone. Everyone is supporting the nation, their army, their forces. एक आवाज़ में जिसे कहते हैं कि सब एक साथ बोल रहे हैं. दैट इज़ वॉट इज़ शोन हियर एंड दैट हैज़ टू बी कंटिन्यू. Those are the messages we have got here. Firstly, see this King of Swords. What else do we need? Like the messages, whatever is happening around us, जो भी इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल वॉर येट, बट जो भी चल रहा है उसमें हम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह आए हैं गाइस. Who is the King of Swords? See, war is definitely going on. Whatever tensions going on between the two nations. So India is coming out as King of Swords, and these are the messages for the collective.
that we don't have to worry about, and overthink of the current situations. If an war-like situations happen, we are coming out victorious, and see, we are the king of swords. And in many earlier wars, the conventional wars we have fought against Pakistan, the last 3-4 wars, whatever have been, India has always come out as the king of swords. That means we have always been victorious. And this is what is the message of the divine for the collective of India. Thank you, angels, for sending this card. And this is a confirmation card. See, the first card itself came out, the king of swords, guys. It shows, see, we don't need any like the current scenario, we don't need any third persons or third countries involvement in our personal issues. We have our own crown, we know what we are doing, we know what we have to do and we can do. So हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है वर्ल्ड के leaders को. India knows what it is doing. Very good card. And secondly, what to say about this? The Empress card is here, guys. See how flourished India is. See, whenever war-like situations or anything happens, such things going on, why we say that Pakistan can't fight more than 3 days? Because war सिर्फ हमारे मिसाइल्स एंड म्यूनिशंस एंड इनसे नहीं लड़ी जाती है, गाइस. उसके पीछे हमें देखना होता है कि हाउ फ्लरिश द नेशन इज़. क्या हमारे पास खाने के लिए पूरा है? क्या व्हाट आर आवर हम क्या एग्रीकल्चरल हमारा क्या स्टैंड है? एंड इट शोज हाउ फ्लरिश्ड इंडिया इज़. एंड दिस इज़ द मैसेज फॉर द कलेक्टिव. हम अगर हमें वॉर में जाना भी पड़ रहा है यहाँ पे, तो हमें कुछ भी चीज़ की कमी नहीं हो रही है. हम बहुत ही फ्लरिश्ड हैं और हम सेल्फ सस्टेन्ड हैं यहाँ पर. ठीक. एंड सेम लाइक दिस कार्ड, सी द एम्प्रेस इज सिटिंग ऑन हर, इट्स लाइक अ थ्रोन and everything is in our favor. So this is the message for the collective that हमें कुछ भूखमरी जैसे हालात नहीं आने वाले जैसे कि पाकिस्तान के साथ होता है. So yes, we are flourished here. Whatever यहाँ पे होता है, हम यहाँ पर हमें कोई टेंशन की बात नहीं है. And the Knight of Wands. See guys, जब हमने वॉर लाइक सिचुएशन के कार्ड्स मांगे इनसे, तो हमें वैसे ही उसी कंटेक्स्ट के कार्ड मिले. आप देख लीजिए, स्वॉर्ड्स आई हैं, नाइट्स आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है इधर. हमारे जो फोर्सेस आप देख ही रहे हैं और आगे भी देखेंगे, हाउ केपेबल आवर आर्म्ड फोर्सेस आर एंड हैव बीन. व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट 10 days, किस तरह से हमने पाकिस्तान को डैमेज किया है. So our forces, our armed men are very capable of doing anything and everything for the country. That matter. The Knight of Wands is here. क्योंकि कलेक्टिव के लिए ये मैसेज क्यों आए गाइज? यहाँ कोई पर्सनल मैसेजेस नहीं है, ये हमारे इसी कंटेक्स्ट में आए क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पे, इवन आई माई सेल्फ फील कि जो भी सीज़ फायर एज लाइक सो कॉल्ड सीज़ फायर जो हुआ है, तो उससे हम लोग बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या ऐसे इन्फीरियर फील कर रहे हैं कि हमने क्यों सीज़ फायर किया, या इस इंडिया जो है क्या झुक गया है यूएस एंड चाइना के लिए. तो ऐसा नहीं है. उसके लिए मैसेजेस है कि आपके हर चीज़ परफेक्ट है. यहाँ पे आप
वॉरफेयर कर लीजिए। आपके फ्रंट लाइन में खड़े लोग जो हैं वो नाइट की तरह हैं, सी एवर रेडी हैं, एंड आप फ्लरिश्ड हैं। तो हम ये सोच कर बुरा नहीं मानेंगे। और ये 3 कार्ड्स अपने आप आए थे गाइस, ये तीनों कार्ड्स। तो आप ये सोच कर ऐसा बुरा ना लगाएं और ऐसा फील नहीं करें, लो फील ना करें। So this is like these 3 cards the guides have sent to boost our morale. I think these 3 cards. Next card again for the collective is, see the 4 of Cups. When you see the 4 of Cups, I think this is the current situation of every layman, every youth, I would say every layman's thought are, अरे जब हम वहाँ तक चले गए थे हमने क्यों नहीं मार दिया, एंड क्यों अब हमने POK नहीं ले लिया, या क्यों पाकिस्तान को उड़ा ही नहीं दिया पूरा, हमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं कर लिया जब हमें इतना अच्छा चांस मिला था। तो इस एक के चक्कर में आप ये नहीं देख रहे कि वॉट वी हैव अचीव्ड सो फार। यही मैसेज यहाँ पर है कि आपके पास और अभी और भी आ रहा है। इसी देखिए, ये जो आपको 4th कप मिल रहा है, ये दिस इज़ बीइंग गिवन बाय द डिवाइन हिमसेल्फ। आप इसके चक्कर में आप ये इसमें इतना इन्वेस्ट हो गए हैं कि अरे ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये भी नहीं मिला मेरे को। क्या आप ये देख ही नहीं रहे कि अरे ये भी और मौके आने वाले हैं यार। ऐसे दुखी होके ऐसे कैसा बैठा है ना, दुखी होके इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितना लो फील कर रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया हमने। तो ये यहाँ से एक कन्फर्मेशन है कि ये लो यार, अभी और आने वाला है। अभी आप ऐसे बुरा मत लगाओ, दुख मत मनाओ, अभी आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं और आप इसकी खुशी मनाओ। आप क्यों नहीं मना रहे हो? आप देखो, हमने उनके 9 to 11 बेसेस जो हैं उड़ा दिए हैं पाकिस्तान के। हमने उनके बहुत सारे फाइटर्स गिरा दिए हैं, जेट्स गिरा दिए हैं, उनके कितने सारे लोग, हमने टेररिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया है। और ये सब की खुशी हम मनाना भूल गए हैं और हम यही सोच के बैठे हैं। तो फिर ये इसका साइन है कि इट्स नॉट डन येट, एंड you are definitely going to be given more chances, and you will be happy emotionally. This shows because see, the cups are emotions. So as for collective, if this card has come, it is showing कि हमें ऐसे इमोशनल नहीं होना चाहिए। और अभी और आने वाला क्या है हम देखेंगे आगे, क्योंकि इस कार्ड का कंफर्मेशन ये है। सी गाइस, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन कार्ड, एंड व्हेन द सन कार्ड इज हियर, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता है गाइस। और द सन इज़ एक चीज़ कही जाती है कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ऐसा एक मुझे क्यों आया ये पता नहीं, बट यहाँ पे देखिए मुझे यही लगा कि इंडिया के लिए नया जो है, ये नया सनराइज है। दिस इज़ वेरी न्यू, एवरीथिंग इज़ गोना बी changed, like the tables reverse kind of situation, and ultimately sun is gonna come up for in India's favor. This is message for the collective. See, you just ride the horse, be happy like a small child, and don't overthink like here. इसके बाद ही ये सन कार्ड आया है, तो ये इसके लिए है कि आप सब कुछ बढ़िया ही आने वाला है। जब अंधेरे के बाद उजाला आता है कहीं, वैसा ही ये कार्ड है। सो बी हैप्पी, जस्ट एन्जॉय व्हाट इज़ गोइंग टू कम, एंड यू विल बी एंजॉइंग, यू विल बी वेरी हैप्पी वॉट एवर सिचुएशंस आर कमिंग, गोइंग टू बी कमिंग, एंड आफ्टर दैट आप बहुत ही खुश रहेंगे। तो शायद आप सबकी मर्ज़ी का हो जाए जो हम सब व्हेन collectively people think about something, when they give their energy, and that
अच्छी जिसको बोलते हैं इंटेंशन से जो हम सोचते हैं वो मिल जाता है। और जब हम सब मिलकर एक ही चीज़ सोचते हैं तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। उसका ही ये कार्ड आया है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी आज इंडिया की रीडिंग में पेंटिकल्स बहुत सारे आए। इवन हमने इसके पहले वाले में भी देखा और अभी भी हमारे बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेंटिकल। और आप खुश रहे हैं यहाँ पर, क्यों खुश रहे हैं कि आपको किस जो इंडिया जो है अब किंग ऑफ पेंटिकल्स है की तरह है। सी हम कितने फ्लरिश्ड हैं यहाँ पर, हमारा जो कंट्री है। हमें जो है हम जैसे कि पाकिस्तान है गाइस, वो IMF से कटोरा लेके लोन लेने चला जाता है, वैसी ही सिचुएशन इंडिया की तो नहीं है, क्योंकि हम IMF से लोन लेते ही नहीं हैं। हमने उनका काफ़ी पूरा ही चुका दिया है। और अब इंडिया जो है सेल्फ सस्टेन्ड कंट्री है एंड कमिंग आउट एज न्यू स्ट्रॉन्ग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। सो हमारे पास पैसे के रिगार्डिंग मनी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे भी हमें यही बताया गया है कि सी हाउ फ्लरिश्ड आवर कंट्री इज़। एंड दिस ऑल्सो शोज़ दैट या तो इंडियन कुछ कंपनीज़ हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज आर गोना गेट सम न्यू डील्स और समथिंग लाइक दैट, कि जैसे चल भी रहा है कि हमारे जो हमने इंडिजिनसली बनाए हुए मिसाइल्स और ये ब्रह्मोस हैं और ये है, उसके लिए हमें डील्स ऑलरेडी वी आर इन टॉक विद मैनी कंट्रीज़ एंड दे आर विलिंग टू, लाइक फिलीपींस को हमने दिया है और भी आगे हमें और भी ऐसे बड़ी डील्स आ सकती हैं। ये उसका साइन है। एंड इंडिया इज़ coming out flourished and in terms of in financial matters also, so there is no need to worry for the collective. Then again this also shows new adventures, beginning of new things. This is also the confirmation. I think बहुत सारे इमोशन, बिकॉज हमने कलेक्टिव के लिए कार्ड्स निकाले हैं, तो यहाँ पे हमको सी वाटर कार्ड्स आर हियर, इट शोज द कप्स, शोज द इमोशंस। सो येस, ऑफ कोर्स every person right now in the country is emotional about the things that have happened and कि हमने सीज़ फायर कर दिया ये ना, तो भी हमें यही सब दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। यही हमसे हमारे एंजल्स कहना चाह रहे हैं, हमारे हायर पावर्स, द डिवाइंस। यही यहाँ पर भी उसका कंफर्मेशन है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। सी व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ टेमिंग द लायन। दिस इज़ द लायन, शी इज़ टेमिंग द लायन। शी हियर आई थिंक इंडिया, क्योंकि हम इंडिया को किस कैटेगरी में देखते हैं, एक इन अ फीमेल, व्हेन इफ़ वी टॉक अबाउट द जेंडर ऑफ द कंट्री, वी इंडिया को हम भारत माता की तरह देखते हैं गाइज। कंसिडर हर दैट। ये देखिए, हम लायन को टेम कर रही है वो, एंड दिस लेडी हियर इनफाइनाइट है इन टर्म्स ऑफ पावर, मशीनरी पावर, मनी, एवरीथिंग इज़ देयर। इंडिया इज़ फ्लरिश। और हम कैसे उसे लायन को वो टेम करिए, तो ऐसे हमने बहुत टेम किए हैं। यही इंडिया का के एस्पेक्ट में, कंटेक्स्ट में ये कार्ड आया है कलेक्टिव के लिए, कि अरे हमने अच्छों को सीधा कर दिया, फिर ये क्या चीज़ है। ये तो 2 दिन का है। अगर हम कन्वेंशनल वॉर में भी जाते हैं पाकिस्तान के, तो ये 2 दिन की बात है गाइस, उससे ज़्यादा वो लड़ नहीं सकता है। दिस इज़ वॉट इज़ शोन हियर, कि ऐसे हम 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं उसको। दिस इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। सो वी हैव दैट स्ट्रेंथ एज अ नेशन, वी हैव एवरीथिंग हियर। दिस आर वेरी गुड एंड एप्ट गाइडेड मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने का और इतना सोचने का ज़रूरत ही नहीं है।
So as a collective, these are very means almost major arcana are here, so nothing to worry for anyone. एज अ कलेक्टिव जो भी हो रहा है, और अगर जो भी होगा, इफ़ वॉरफेयर विल बी देयर, इफ़ वी हैव टू गो टू conventional war also, ultimately the sun is rising on us, our country, and we are coming out victorious. We are the empress, we are the king, we have that strength. So that's it guys. These are very good messages. All in all, just be happy, don't overthink the current scenario, the situation. Don't overthink about those things. And yes, do like the video if you like, give your comments what you think, and just follow these things. There are no better messages, even if the government or officials which convey the messages, they convey to us more than these guided messages from the divine. So yeah, that's it for this reading. Do follow and like the video. Thank you. Meet you again.